Today, the Modi government carried out a surgical strike on Islamic fundamentalism. After threatening to ban Islamist radical hate group, the PFI, the centre passed an order at the break of dawn. Your channel has been campaigning for 6 years, exposing that the PFI was behind repeated attacks not just on individuals but also on the country's interests. The ban is now for 5 years. It provides a modicum of justice to several Hindus who were cut down by the PFI's vicious Hindu phobia. Praveen, Sanjeet, V. Ramalingam, Nandi, Abhimanyu, Nibin, Sharat, Rudresh. The list goes on and on. The government has provided elaborate reasons for banning the PFI, and it is needed to take this precaution because at least 2 attempts to ban the PFI earlier have failed. Despite the long list of misdemeanors listed by the investigating agencies, there are several politicians, chiefly from the opposition and activists, who still continue to say that this is about fanning Islamophobia and that the RSS and the PFI are 2 sides of the same coin. A draconian ban of this kind is dangerous, as it is a ban on any Muslim who wishes to speak his mind. मुनासिब नहीं है, लेकिन मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उस पर बैन लगा दिया गया. The campaigns of hate, polarization campaigns of hate and terror, anti-minoritism, all these continue. सरकार को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, मुस्लिम समाज में ऐसा टेरर पैदा नहीं करना चाहिए ताकि वो टेररिज्म के पास चला जाए. There are several people now who are also saying that the RSS and the PFI are one and the same, and a ban would make sense only if the saffron outfit also is banned now. एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए. The government, by banning PFI, has made a selective banning. Unless they ban similar other organizations like Bajrang Dal and Ram Sena. How come PFI is banned but organizations associated with convicts of Khaja Ajmeri bomb blast are not? इसीलिए मैं कहता हूं कि it should not be a selective approach. RSS वाले करें तो वो इनको सूट करता है, अगर कोई दूसरा करे तो इनको नुकसान पहुंचाता है. We demand the union government to ban right-wing organizations like RSS, Sanathan Sansad, Vishwa Hindu Parishad, Bajrang Dal, Ram Sena. All right, joining us now is Binay Singh, a political analyst. We also have with us Tushar Gupta, senior editor Swaraj, Ahmed Ayaz, analyst, and Syed Hasanul Haq, advocate and political activist. I want to start by asking you, Binay Singh, do you think that this is a strike against Muslims in particular? Because remember, the PFI says when there was COVID, we helped in providing medicine. We gave oxygen. We also helped in, cremating people who had passed away, who do not have basic facilities. And now they are banned. Padmaja, PFI is not a normal type of organization. It is a terrorist outfit with the next generation modus operandi. So the humanitarian aid is just a camouflage to fool others, and exactly they are following the same pattern like Jamaat-ud-Dawa follows. Jamaat-ud-Dawa also works on the same pattern. And this is not a case of Hindu versus Muslim, because the main point I'll tell you that very recently what happened in Patna, and it was exposed that something big was planned into the rally of Pradhan Mantri Modi. So you know who revealed these facts? He was Fulwari Sharif SHO, and his name was Iqrar Ahmed. He is a Muslim. And I think Iqrar Ahmed can be a role model, not just for Muslims, but for all the Indian youths, for all this country. So how come this become a Hindu versus Muslim matter, while many Muslim organizations and big Muslim organizations, they have a big fan following and a big base, they have demanded a ban on PFI. So if you are saying that ban on PFI is banning or targeting Muslims, you are trying to demean the Muslim community. You are disrespecting the Muslim community. Ahmed Ayaz, disingenuous and disrespectful. Yeah, it also yes, it is really true that it cannot be said that the PFI represents the Muslim community. That also is there. But the question is to see that if PFI is being banned
why are the questions raised? So it is itself a question, in itself a question for the government of the day to see how their action is being taken. Question is taken. Question is this, that how people, why are people taking it even if there's a logical action? Why people doubt their action? It is because people mistrust the government. People trust the administration. Possibly they must have acted like that. It is basically politicians who are raising these doubts. These are not people. These are not people. These are politicians because they will want to spin it a certain way, right? You say, no, they have a reason to say. Why? Because PFI has been there in operation for last many years. You see, to ban an organization, it is a very major action, and it has to be taken only after seeing that there are sufficient grounds. What is the ground? You have Sir, raided, my question to you is very simple. And what is on the a day made? when finally the PFI has been banned, what is the logic of trying to dig up this dead and buried bogey Syed Hasanul Haq of Islamophobia? Where is the Islamophobia in this? Who is Islamophobic? There are people who are involved in the entire process of initiating the ban against the PFI who themselves are Muslims because they are doing their job as investigators, as police officers. What does this have to do with a religion? हसनुल हक साहब, इसका रिलीजन से क्या लेना देना है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं शहीद आजम भगत सिंह की आज बर्थ एनिवर्सरी है, उनको खराज अकीदत पेश करता हूं, नमन करता हूं। देखिए, आज सबसे पहले आज बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने एक कट्टरपंथी सोच को बैन किया। वाकई ये बहुत अच्छा काम है। उन्होंने पीएफआई को बैन किया है। आज जो बैन किया गया वो 8 साल पहले बैन कर देते, ये और अच्छा होता। लेकिन देखिए, एक आंख से नजरों से देखने का काम नहीं है ये। सिर्फ मैं चाहता हूं, मेरी अपनी सोच है कि सिर्फ एक कट्टरपंथी पीएफआई को ही बैन करना क्यों? देश के अंदर वीएचपी, आरएसएस, ठीक है, बजरंग दल, ये जो पहले आतंकवादी संगठन जिसको सरदार पटेल जी ने भी बैन किया, तो उसको भी बैन करने की आवश्यकता है देश में। आज देखिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा कार्रवाई किया नरेंद्र मोदी जी ने। मैं चाहता हूं कि मैं और बधाइयां दूंगा कि वो जितने भी ऐसे लोग हैं जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, धर्म के नाम पे चला रहे हैं और धर्म को, देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो ये बताइए सैयद हसनुल हक साहब, देश में हमारे जितने कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट से शुरू कीजिए और सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, कितने यूएपीए के, एनआईए के केसेस हैं आरएसएस के, बजरंग दल के खिलाफ, जिसके चलते उनके ऊपर बैन होना चाहिए। एक प्रोसेस होता है ना बैन का। बैन ऐसे तो यार सुबह उठे और कहा बैन कर दो, आपने टीवी पे बोला और कहा बैन कर दो। एक प्रोसेस होता है, कोई केस होंगे। चलिए, 4 जिलों में आप पे यूएपीए के केसेस चल रहे हैं, 4 लोगों को कन्विक्ट किया गया है। आप 2 केसेस बताइए जिसमें यूएपीए या किसी और एंटी टेरर लॉ में केसेस चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, देश में सबसे पहला जो देश का हत्यारा था, गांधी जी का जो आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। सर, अभी की बात कीजिए ना, अब आप हिस्ट्री में जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसी सरदार पटेल जी ने बैन को क्यों उठाया था, फिर क्या बोला गया था, फिर उनकी बायोग्राफी में क्या लिखा था। आप आज की बात कीजिए। बैन अगर आज हो रहा है तो उसका वजह ये नहीं हो सकता कि 1947 में जो हुआ था उसकी वजह से आज बैन करेंगे। आप सुन लीजिए जरा। आज की बात बताइए। सुन लीजिए मैम, आज की बात कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं। आज साध्वी प्रज्ञा कौन है, ठीक है, ये इंद्रेश कुमार कौन है, ये लोग कौन है? आपको देश का गृहमंत्री जो है वो तरीपार है। अरे क्यों बोल रहे हैं? पेट में दर्द हो रहा है, क्या परेशान हो रहे हैं? कोर्ट ने कन्विक्ट किया इन लोगों को जिनका नाम आप ले रहे हैं। टाइम में नहीं हुआ आपको, आप बताइए। आप सबसे पहले आज भी मैं गुजरात गया हुआ था, गुजरात की सड़कों पे गया तो गुजरात के, मैं आपको फोटोज क्लिक करके मैंने रखा है, आपको भेजूंगा आपको। वहां लिखा हुआ था हिंदू राष्ट्र में बदाप्ते में सब पोस्टर पे लिखा हुआ
हिंदू राष्ट्र सर आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? आंसर द लिमिटेड क्वेश्चन। आपने जो एक सेकंड, आपने जो एग्जांपल लिया है साध्वी प्रज्ञा का, इंद्रेश कुमार का, तुषार गुप्ता, उनके चलते आरएसएस पे बैन क्यों ना? अरे स्पेसिफिक क्वेश्चन है, फिर तो भाषण हो जाएगा, डिबेट नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट भी नहीं होगा, ये भाषण हो जाएगा। फिर अब आप गुजरात की बात करेंगे, फिर आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, फिर आप आर्यन सिविलाइजेशन की बात करेंगे, आप ये बताइए, फिर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पे चले जाएंगे। ऐसे तो नहीं हो पाएगा। इंद्रेश कुमार और साध्वी प्रज्ञा, तुषार गुप्ता कौन था? Padmaja, how wonderfully you can see through their toolkit today. How wonderfully. आज इनकी टूलकिट ये है कि भाई हमारी कट्टरपंथी तो प्रूव हो गई है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो बैन हो गई है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टेरर रिकॉर्ड पूरे पब्लिक के सामने आ गया है, तो हम चलते फिरते हर ऑर्गेनाइजेशन को कट्टर डिक्लेयर कर देंगे, ताकि अगर आज पीएफआई को कट्टर ऑर्गेनाइजेशन कहा जा रहा है तो आरएसएस भी कट्टर है, वीएचपी भी कट्टर है। मेरा सवाल सीधा सा है, आपको सरकार पे भरोसा नहीं है, ठीक है, आपको लगता है सरकार एंटी मुस्लिम है, चलो मैं आपकी एक सेकंड के लिए बात मान लेता हूं। 2010 में केरला पुलिस, बीजेपी वहां नहीं थी, ना स्टेट में ना सेंटर में, 2010 की बात है, केरला पुलिस raided a PFI camp where they found pro-Al-Qaeda and pro-Taliban literature along with various weapons and targets. 2013 April, again no BJP in Kerala, no BJP in the center. The Kerala police under the Kerala government raided another PFI terror camp in Kannur and found that people were being trained to carry out terror attacks, petrol bombs, bomb making apparatus was found. आप कह रहे हैं बैठकर कि बीजेपी ने इसलिए बैन किया क्योंकि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। पीएफआई का एक सोल एजेंडा था हिंदू और मुसलमान के बीच में डिवाइड क्रिएट करना, उसमें हिंदू का भी नुकसान है, मुसलमान का भी नुकसान है। तो यहां बैठ के ये अज्यूम करना कि पीएफआई वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, दैट्स द मोस्ट फिशिशियस आर्गुमेंट यू कैन एवर मेक, दैट्स द रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट यू कैन एवर मेक। सैयद हसनुल हक, आपको आवाज आ रही है? Okay, we seem to have lost the line with him. But Padmaja, may I? Should I respond? No, just should I respond? Finish your point, Tushar Gupta. Then I'll come to you, Mr. Ayaz. Yes, finish your point. You know, the new toolkit, Padmaja, is to create some political parties, and this was my first question in the morning, that who are the parties that will give political cover fire to the PFI today? These are political parties who want to use this opportunity not to call out the sins of the PFI, but to use this ban as an opportunity to capture some Muslim votes in the sympathy wave. This is wrong. This is disservice to the nation. You need to understand that the PFI for the last 10 years, before Modi came to power, before all state governments... No, but answer the question that is being asked about the RSS. He's saying, fine, you want to ban the PFI, you ban the PFI, why aren't you banning the RSS? If the RSS also had people like Sadhvi Pragya and Indresh Kumar. Padmaja, across Kerala and Bengal, RSS workers have been butchered mercilessly for the last few years. Tell me one RSS man, one RSS Shaka, one RSS representative that has been caught hurling petrol bombs on the opposition parties. Just one. Tell me one RSS group that has been involved in violent protest on the streets because there has been a crackdown against their organization. चलिए, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। सर, आपका हो गया तो मैं बोलूं। साहब, या आप हो गया तो मैं बोलूं। अभी अलीगढ़ के अंदर हिंदू महासभा के लोग हैं, ये नरभक्षी नरसिंहानंद, ये जाता है जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में। पहली बात तो आप हर चीज को कन्फ्लेट और कंफ्यूज करते हैं। स्वामी, मेरी बात ये जो नरसिंहानंद है, सुनने आप है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर जब जाते हैं, सर नरसिंहानंद को डालिए ना आप जेल में, बट उससे आरएसएस का बैन करने की क्या बात है? क्यों नहीं आप? अरे देखिए, आप आरएसएस क्यों नहीं बैन करेंगी? वो आतंकवादी संगठन है। पहलू खान को मारने वाले कौन लोग थे? आप है। पहलू खान को है, आप अखलाक को कौन मारने वाले हैं? पहलू खान को जिन्होंने मारा था वो जेल में हैं। अरे और उनका लोग जुड़े हुए ये लोग हैं। आरएसएस एक सोच नहीं है, विचारधारा। चलिए, वो सोच आरएसएस की है, वो सोच के चलते बैन कीजिए। पद्मजा, आरएसएस कहां से लोगों ने एक मिनट थोड़ा, अरे इतना बोला थक गए होंगे, थोड़ा सुन लीजिए दूसरे का भी। आप बताइए कहां से निकले? आप सुन तो लीजिए सीधे। पद्मजा जी, आपको कहना, अरे भाई दोनों बोलेंगे, नहीं सुन पाएंगे एक दूसरे को। आस्थाओं को आहत करने वाले लोग। हाँ हाँ, एकदम आप सुन लीजिए बैन कर देना चाहिए देश। सुन लीजिए नॉन पॉलिटिकल। पद्मजा, जब इन्होंने भगत सिंह के नाम से अपनी बात शुरू की ना,
तभी मैं समझ गया था कि ये अपने आगे कोई बड़ा झूठ बोलने वाले हैं, जिसको क्रेडिबिलिटी ऐड करने के लिए भगत सिंह का नाम का सहारा ले रहे हैं। बात सुनिए आप, बात सुनिए। अभी मिस्टर गुप्ता ने कहा कि ये टूल किट है पद्मजा, और ये टूल किट इज विजिबल इन द स्टूडियो रूम। यू कैन सी व्हाट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई लेट एक्शन? व्हाट द गवर्नमेंट डूइंग फॉर द लास्ट 8 years? The government is targeting Muslims and we are against PFI, but what about RSS? This is a toolkit, sir. And all the panelists, including you, those who are criticizing but not criticizing PFI, they are having the same set of questions. You are exposed. You are exposed. And Padmaja, नहीं, आप उसका जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि भाई आपका मक्का मस्जिद का केस है या आपका पहलू खान का केस है, ये सब आरएसएस की सोच है और इसका बैन होना चाहिए। 100 साल हो गया होने वाला है आरएसएस को बने हुए। मर्डर छोड़ दीजिए, एक झापड़ मारने का केस प्रूव नहीं हुआ आरएसएस के खिलाफ। और दूसरा, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। अभी जून 2022 में केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें 13 आरएसएस के कार्यकर्ताओं को यह कहते हुए बरी किया गया मर्डर के चार्ज से कि राज्य सरकार ने पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली मोटिवेट होकर इनके ऊपर चार्जेस लगाए। एक झापड़ मारने का चार्ज नहीं है आरएसएस के लोगों पे। गोली मारना और बंदूक चलाना और मर्डर करना छोड़ दीजिए, बल्कि आरएसएस के कार्यकर्ता मारे गए हैं। मारे गए साहब, नॉर्थ ईस्ट से लेकर केरला से लेकर के यूपी, बिहार, कश्मीर, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां आरएसएस के कार्यालय और आरएसएस के कार्यकर्ता टारगेट नहीं किए गए हैं। और आप अपनी बेईमानी छुपाने के लिए भगत सिंह का नाम लेते हैं। जैसे ही आपने भगत सिंह के नाम से शुरू किया, मैं समझ गया कि आप उनके नाम का मिसयूज करके अपनी झूठ को सच साबित करने में लगे हुए हैं। आपके पास एक केस नहीं है, आपके पास एक केस नहीं है, और जोर से बोलने से आप सही नहीं हो जाएंगे। टूलकिट लेकर के बैठे हुए आपकी तरह कोई और दूसरी स्टूडियो में बैठ करके हम पीएफआई का विरोध करते हैं, लेकिन अरे बिना लेकिन के भी तो कुछ बोलिए साहब, बिना लेकिन आपको चैलेंज दिया गया है सैयद हसन हक साहब कि ये आप कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं। पीएफआई मुसलमानों का संगठन नहीं है। इस देश के दर्जनों मुसलमान संगठन है जिन्होंने पीएफआई के खिलाफ बात कही है। पीएफआई इस देश के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करता। इस देश का मुसलमान इस देश से प्यार करता है और पीएफआई का समर्थन नहीं करता है। हसन उल हक साहब, आपको एक सीधा चैलेंज दिया जा रहा है, आपको सीधा चैलेंज दिया जा रहा है कि कौन से केस में, थप्पड़ मारने के केस में भी कन्विक्शन नहीं हुआ है किसी आरएसएस कार्यकर्ता का, ऐसा विनय सिंह का चैलेंज है। आप उनको डिस्प्रूव कीजिए। कहने का केस हो, किसी को थप्पड़ मारने का केस हो, ये भी तो बता दो कि कन्विक्शन हुआ है। मर्डर को छोड़ दो, टेररिस्ट चार्जेस को छोड़ दो साहब। अरे माफी पुत्र बोलो मत बीच में। क्या क्या क्या? माफी पुत्र बीच में मत बोलो। माफी पुत्र, अरे सुन लो, जिनके खिलाफ माफी पुत्र बोल रहे हो ना, उनको अंग्रेजों ने अपना दुश्मन घोषित कर दिया था। अंग्रेज कहते थे कि बड़ा खतरनाक आदमी है। गांधी जी ने उनके बारे में अच्छी बातें कही। भगत सिंह जिसका नाम आपने लिया, भगत सिंह ने उनके बारे में अच्छी बातें कही हैं। अरे पढ़े लिखे नहीं हो, जाहिल आदमी हो, और जोर से बोलने से आप सही नहीं हो जाओगे। ठीक है, मुहावरा मत यूज करो। ओके, प्लीज लेट्स नॉट डू इट टू मैमे। एंड व्हाट इज दिस माफी पुत्र सर? आई मीन कहां डिबेट आप ले जा रहे हैं? आप फैक्ट से काउंटर कीजिए ना। अभी विनय सिंह कह रहे हैं कि कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, आप बोलिए फला कन्विक्शन हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं, बैन होना चाहिए। पद्मजा कह रहे हैं झापड़ मारने का केस लाओ ना बाबा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। झापड़ मारने का केस प्रूव हुआ है क्या 100 साल में? पद्मजा दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और आरएसएस ही नहीं, आरएसएस के जितने एफिलिएट्स हैं वो अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट्स में, मजदूरों में सबसे बड़ा, पॉलिटिकल पार्टी के नाते सबसे बड़ा। एक मैं कह रहा हूं झापड़ मारने का केस देख लो, अहमद अयाज साहब। द फनी थिंग इज मिस्टर अहमद अयाज कि आप यहाँ पर जिनकी अभी पैरोकारी कर रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट मिसलीडिंग मुस्लिम्स। आपके कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, आपके वुमेन्स फ्रंट ऑफ इंडिया, बच्चों को ला रहे हैं, जूनियर फ्रंट ऑफ इंडिया, इन सबको बैन किया गया है, जहां पर राइट फ्रॉम द केसेस ऑफ मर्डर टू मिसलीडिंग इन द गार्ब ऑफ हिजाब प्रोटेस्ट, ये सारे एग्जाम्पल्स कोट किए गए हैं सर। अहमद अयाज, किसका नुकसान होता है? नुकसान तो मुसलमानों का ही होता है जब कैंपस फ्रंट के प्रोटेस्ट होते हैं और बच्चियां स्कूल नहीं जाती। Padmaja, I am of the view that let there be an action against anyone who is found to be violating law, whoever it may be. But the question is, don't you think that this goes one-sided?
bulldozers are being used against the Muslim properties. You are doing the same thing what PFI does. You are instigating a Muslim community. And those who are criminals who's out there इतना पुराना रिकॉर्ड हो गया है मनोहर साहब, कितनी बार इस फेक नैरेटिव को बस कर चुके हैं, 10 बार बता चुके हैं. अभी तो बुलडोजर की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के नेता के रिजॉर्ट पे चल गया ऋषिकेश में बुलडोजर. कब तक यही ब्रोकन रिकॉर्ड चलाते रहेंगे आप कि मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों को बैन कर रहे हैं, मुसलमानों को अरेस्ट कर रहे हैं, मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहा है. सर ग्रो अप. में वही लोग बोल रहे थे कि मुसलमान भगा दिए जाएंगे. 2 साल हो गए, पूछिए एक नाम पूछिए कौन सा मुसलमान भगाया गया इस देश से. ओके, तुषार गुप्ता वांट्स टू गिव अ क्विक रिबटल. तुषार गुप्ता, यस. पद्मजा, आज का टूल किट ये है कि क्योंकि पीएफआई का कट्टरपंथी प्रूव हो गया है तो आसमान से लेकर जमीन तक बीच में कोई भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है या हिंदू है वो भी कट्टर है. ये पीएफआई की बात नहीं करेंगे, ये पीएफआई की लिटरेचर की बात नहीं करेंगे, ये पीएफआई के एजेंडा की बात नहीं करेंगे, ये पीएफआई के वायलेंस की बात नहीं करेंगे, ये पीएफआई के कार्डर की बात नहीं करेंगे, बाकी हर बात करेंगे, पर ये बात नहीं करेंगे कि पीएफआई का जो इतना इलैबोरेट क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसके तहत उसको बैन किया गया है, जिसके तहत उसकी एक्टिविटीज अब यूएपीए में है, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे. बट अब डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्ट अटेंशन, ये टैक्टिक लगा दिया गया. दूसरी चीज हमें ये समझना होगा कि पीएफआई इज नॉट द सोल रिप्रेजेंटेटिव और वाज नॉट इवन रिमोटली द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स एवर. It was just running its own agenda, which was very, very political in nature. It had nothing to do with welfare. It had nothing to do with economics. It had nothing to do with social service. It was purely and purely radicalized political organization. Absolutely. In fact, only a small point of difference in the verbiage there. Not only is it not the sole representative, it is not even remotely any kind of representative of Muslims in our country. They have a very clear, radical, political, anti-India agenda, which also means that it's anti-Indian Hindus agenda, anti-Indian Muslims agenda, and they must be called out for what they are. Now, they and their 8 affiliates are banned for 5 years. Good riddance. Thank you very much, all gentlemen, for joining me.